चलो भाई, वी आर गोइंग टू डील अबाउट द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कौन सा लॉ? गॉस लॉ। चलिए, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और लिखेंगे गॉसियन सरफेस। लिखोगे सभी कोई? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इज द स्पेलिंग गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वी आर राइटिंग द गॉसियन सरफेस। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ओके, सेल्वी इनिशिएट लिखेगा लिखेगा एन इमेजिनरी सरफेस, an imaginary surface, drawn symmetrically, drawn symmetrically, drawn symmetrically about a symmetrical charge distribution, drawn symmetrically about about a symmetrical charge distribution, about a symmetrical charge distribution, about a symmetrical charge distribution, charge distribution in order to 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 obtain the magnitude of electric field, in order to obtain magnitude of obtain 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 magnitude of electric field, in order to obtain magnitude of electric field at a certain point at a certain point at a certain point in a space is called as Gaussian surface. At a certain point in a space is called as at a certain point in a space is called as Gaussian surface. Is called as Gaussian surface. Point number two. Point number two. लिखिएगा magnitude of electric field at every point of Gaussian surface. लिखिएगा magnitude of electric field at every point of Gaussian surface. Magnitude of electric field at every point of Gaussian surface. Magnitude of electric field at every point of Gaussian surface is constant. At every point of Gaussian surface is constant. इस वर्ड जल्दी बताइए, कांस्टेंट। नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड, Gaussian surface must passes the Gaussian surface must, third point, Gaussian surface must passes the point must passes the point where the magnitude of magnetic field, where the magnitude of electric field, sorry for that, where the magnitude of electric field, where the magnitude of electric field, where the magnitude of electric field is to be calculated, is to be calculated, is to be calculated, is to be calculated. लिखा? चलिए, लिखा सबने? Point number 4. In order to determine the magnetic field, in order to determine the electric field, sorry for that, in order to determine the electric field, in order to determine the electric field, in order to determine the electric field, in order to determine the electric field,
In order to determine the electric field, apply the formula of Gauss law. Apply the formula of Gauss law. That is, apply the formula of Gauss law. That is क्या Gauss law का formula है? The formula is enclosed integration E dot ds. लिखा है आप लोगों को E dot da. बोलो यार yes or no. This is called as a enclosed integration. कौन सा इंटीग्रेशन कहलाता है? इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन. सारे बच्चे गौर से लिखो. इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. बोलो बताया था ना ये चीज. कोई दिक्कत कोई आपत्ति? वी हैव रिटन द स्टेटमेंट, वी हैव कैलकुलेटेड द फ्लक्स. और ये किसका वैल्यू है जल्दी बताइए. इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू. किसका वैल्यू है जल्दी बताओ. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. राइट डाउन दिस ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. सारे बच्चे गौर से सुनो. यहां क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए आइए पहले कुछ बातें समझते हैं और इंपॉर्टेंटली देखते हैं. पेन स्टॉप करें और गौर से बोर्ड की ओर देखें. यहां पे लिखते हैं एप्लीकेशन 1. पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. सारे बच्चे ध्यान से देखो. पहला एप्लीकेशन क्या कहता है बच्चों कि लेट अस सपोज यहां पे एक स्फीयर है और वो स्फीयर किसी भी चीज का हो सकता है. इधर इट कैन बी मेटल और नॉन मेटल, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, व्हाटएवर इट मे बी. बट फिलहाल मैं इसको कंडक्टिंग शेल कंसीडर कर रहा हूं. क्या कंसीडर कर रहा हूं जल्दी बताओ. कंडक्टिंग शेल. सारे बच्चे ध्यान से. कंडक्टिंग शेल मतलब वो कंडक्ट कर सकता है. तो कंडक्ट ज्यादातर मेटल्स ही करते हैं. शेल होने का मतलब क्या है. वो अंदर से वैक्यूम है या भरा हुआ है. सोच के बताओ यार. अंदर से वो खाली है भरा हुआ है. शेल का मतलब क्या होता है. खाली होना, खोखला होना. तो अंदर से वो क्या है जल्दी बताइए. वैकेंट है. तो ये वैक्यूम फ्रॉम इनसाइड. शेल का मतलब क्या हो जल्दी बताइए. वैकेंट फ्रॉम इनसाइड. फ्रॉम इनसाइड. ओके. सारे बच्चे गौर से देखो. यहां तक क्लियर है. एक काम करते हैं इस वाली चीज को हम लोग अलग से एक बार बना लेते हैं. ये 4 सेल है. ये कंडक्टिंग शेल है. मैंने बना लिया इसको. ठीक है. अब बताओ प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है अंदर जाती है. सारे बच्चे गौर से देखो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बाहर या अंदर. बाहर. ठीक. तो मैंने सिमेट्रिकली बाहर निकाला है. सिमेट्रिकली मतलब चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर कमिंग आउटसाइड. क्यों कमिंग आउटसाइड. बिकॉज इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज है बताओ. पॉजिटिव चार्ज. तो हम क्या करेंगे. इसके चारों तरफ एक सरफेस कंसीडर कर लेंगे जो सिमेट्रिकली ड्रॉन होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सिमेट्रिकली ड्रॉन मतलब क्या है. वो सरफेस जो तुमने माना है वो सरफेस एक तरह का इमेजनरी सरफेस है. कैसा सरफेस जल्दी बताओ. इमेजनरी सरफेस. और वो सरफेस तुमने सिमेट्रिकली बनाया है. सिमेट्री का मतलब कि ये इक्वली डिस्टेंस से रखा है इस स्फीयर से. सारे का डिस्टेंस स्फीयर से क्या है. सेम या डिफरेंट. सेम. चूंकि ये इमेजिनरी सरफेस है तो डॉटेड लाइन से बनाना ज्यादा मैं इसको बेहतर समझूंगा. तो जगह जगह से इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं. कोई दिक्कत कोई आपत्ति. बोलो यार. सबको समझ में आया कैसे बना है. तो ये इमेजिनरी सरफेस बना दी. और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम आएगा. मतलब जो तो वैल्यू तुम लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम आने वाला है. मेरा मन है मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है तो उसका भी डेटा वहीं आएगा ही. यहाँ लाना है यहाँ भी ही आएगा. यहाँ लाना है यहाँ भी ही आएगा. यहाँ लाना है यहाँ भी ही आएगा. कोई दिक्कत कोई आपत्ति. अब चलो हम सेल के केस में मान लेते हैं कि इसका रेडियस कुछ आर है. रेडियस कैपिटल आर है. रेडियस कितना जल्दी बताओ. कैपिटल आर. ठीक. आर इज द रेडियस ऑफ सेल. आर इज द रेडियस. गलती मत करना. देखना सभी कोई. और हम अपने मन से एक चीज और कंसीडर करने वाले हैं. सारे बच्चे देखो. और वो कंसीडर ये कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि इसका एक सर्टेन डिस्टेंस है. किसका. ये मेरा गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस हम कहेंगे. कौन सा सरफेस कहेंगे जल्दी बताइए. गॉसियन सरफेस. उस गॉसियन सरफेस का
सेंटर ऑफ स्फीयर से, स्फीयर सेंटर से, ये स्फीयर का सेंटर है, इससे जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर है। कितना डिस्टेंस है बोलो? स्मॉल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, बोलो यार ये सुनो, और इसका डिस्टेंस कितना माना है? स्मॉल आर। तो ध्यान रखना, स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं जल्दी बताओ सबको? सेंटर से। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? समझ में आ गई बात है? और कैपिटल आर को क्या माना है मैंने? रेडियस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो किसी रैंडम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है बाहर, तो ऐसे करके बना दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ओके, सही बात। यहीं पे आपने ड्रॉ कर दिया डीए को। डीए मतलब स्मॉल एरिया वेक्टर, मैंने तुमको लेना सिखाया है। सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, सरफेस के क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर ले लिया। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शंस में? अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से एक ही है, ये भी इधर और ये भी इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम। अगर सेम है तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? जीरो। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? जीरो। ये तो आता है तुम लोगों को करने। अब चलिए अप्लाई करते हैं। वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो मैं लगाऊंगा गॉस लॉ। और गॉस लॉ का क्या फॉर्मूला क्या है जल्दी बोलो सब कोई? इनक्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, सारे बच्चे गौर से, समेशन क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो अप्लाई करते हैं। ई और डी के बीच में कितने का एंगल? कितने का एंगल जल्दी बोलो? तो लगा दो ई डी ए कॉस जीरो। कॉस ऑफ कितना डिग्री जल्दी बताओ? जीरो। समेशन क्यू इन, समेशन क्यू इन का मतलब समझो, जो गॉसियन सरफेस आपने माना है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है। तो भाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा तो स्फीयर ही आ जा रहा है, और इस स्फीयर पे चार्ज मान लो क्यू। कितना मान लो? क्यू। क्यू इज द चार्ज ऑन स्फीयर। ठीक। तो इस पूरे सरफेस के अंदर कितना चार्ज है जल्दी बताओ? क्यू। तो लिख दो यहाँ क्यू, लगा दो एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कॉस जीरो का डेटा कितने के बराबर? ई को मैंने बाहर निकाला, और डी ए, क्या ई को बाहर निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि डी के साथ क्या लगाए बोलो? ए। तो ई मेरे लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसको किधर निकाल दे? बाहर। डी ए अंदर आ गया तो हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इंटीग्रेशन, मैंने बोला ये सेल है, सेल कैसे शेप का होता है? थ्री डायमेंशन या टू डायमेंशन? तो इससे जो गॉसियन सरफेस वो भी कैसा बनेगा? थ्री डायमेंशन बनेगा। ये इज द इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। तो एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो एरिया ही मिलेगा। और बताओ एक सेल का एरिया कितने के बराबर होता है? एक सेल का एरिया कितने के बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर, या टू पाई आर स्क्वायर, या फोर पाई आर स्क्वायर? सब डरते हो यार सालो तुम लोग। अब गेट हटा दो। चलो देखो सब कोई, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर? बोलो सब कोई, कितना होता है बोलो? फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। सारे बच्चे ध्यान से, फोर पाई आर स्क्वायर, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्यू बाई क्या चीज? फोर पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ इतना कर सकते हैं ना? अरे फोर पाई आर स्क्वायर को नीचे ले गए। अब तो अगर मुझे रीअरेंज करना हो तो क्यू को ऐसे लिख देंगे, फोर पाई आर स्क्वायर को एक साथ, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दो, और आर स्क्वायर को अलग कर दो। बोलो यार। बट वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कुछ होता है, क्या होता है? के। कितना बेटा बताया था? 9 इंटू 10⁻⁹। अरे स्टार्टिंग में ही बताया यार। तो इसके जगह के लिख सकते हैं क्या? ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? के क्यू बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। Here is the value of electric field। इसका वैल्यू जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया सभी को? मैंने कहा एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस आपको ड्रॉ करना है जिसपे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो किसी फिगर का। उनमें से एक फिगर है ये कंडक्टिंग शेल, जिसके आउटसाइड पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला। हालांकि ये फॉर्मूला तुम्हारा जाना पहचाना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर कई बार यूज हो चुका है। कोई दिक्कत? अब चलिए समझते हैं। मैंने यहाँ पे पहला केस लिया जहां पे मैं आउटसाइड जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं। किसके बाहर जा रहा हूं? सेल के बाहर। सेल के बाहर जाएंगे तो आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये डिस्टेंस इसके रेडियस से ज्यादा है या कम है? ये डिस्टेंस इसके रेडियस से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। डेटा आ गया, ठीक है।
सारे बच्चे आप गौर से सुनना, अब यहाँ से चीजें थोड़ी चेंज होंगी। क्लियर है? यहाँ से आधे पॉइंट नंबर 2 पे सारे बच्चे ध्यान से। हो सकता है मैं ऑन सरफेस चला जाऊं। ऑन किस पे चल जाऊं जल्दी बताइए? सरफेस। मैं सरफेस पे आ गया। किसके सरफेस पे आ गया? सेल के सरफेस पे। ऑन सरफेस ऑफ सेल। जैसे सेल के सरफेस पे आ जाते हो तो बताओ क्या स्मॉल आर का डेटा क्या कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाएगा? स्मॉल आर का डेटा किसके बराबर हो जाए? कैपिटल आर। या क्लियर नजर आ रहा है? स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर हो गया बच्चे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू इन में क्या लगा दोगे? एप्सिलॉन। सारी कहानी वैसा ही चलेगी क्या? वही कहानी यार। इसका गॉसियन सरफेस कहाँ आ जाएगा फिर? जहां निकालना है वहीं पे गॉसियन सरफेस, मतलब इसके सरफेस पे ही गॉसियन सरफेस बनेगा। सुन लो सारे बच्चे, इसका जीएस कहां बनेगा? ऑन सरफेस। ऑन क्या बनेगा? सरफेस। थीटा का वैल्यू लोगे कितना होगा? 0 डिग्री। सेम सब कुछ चलेगा। आर का वैल्यू किसके बराबर? आर। ये सारी कहानी करने के बाद तुमको फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा कि E का वैल्यू जो है वो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर है। क्या सभी ये बात समझ पा रहे हैं क्या? अरे के क्यू बाई आर स्क्वायर आया, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। बोलो यार, वही कहानी। और गॉसियन सरफेस कहां बनेगा? ऑन सरफेस पे। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? चलो इस बात को बढ़ते बढ़ते हम यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा और डीप में आ जाते हैं। थर्ड, मान लेते हैं इस आर का डेटा स्मॉलर है कैपिटल आर से। मतलब क्या हुआ? इससे आर का वैल्यू इस कैपिटल आर से छोटा है, इसका मतलब क्या है? अंदर, बाहर या सरफेस? बाहर हो चुका है, सरफेस हो चुका है, बचा क्या? अंदर। तो इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। अंदर चले हैं क्या आप? इनसाइड जैसे आप आ गए तो सुन लेना सारे बच्चे, ध्यान देना। जब कभी इनसाइड आते हैं तो बताओ यार इसका चार्ज कहां लाई कर रहा है? वेयर इज द चार्ज रिसाइडिंग? ऑन द सरफेस और इनसाइड? ऑन द सरफेस। क्या अंदर चार्ज है क्या? तो अंदर चार्ज का वैल्यू ही क्या हो जाएगा? समेशन क्यू इन का डेटा 0 के बराबर। अरे बोलो यार ये अगर हम अंदर आ जाते हैं तो अंदर मुझे कोई चार्ज ही नजर नहीं आएगा। गॉसियन सरफेस अगर बना भी लिए तो चार्ज क्या मिलेगा? क्या नहीं। जब समेशन क्यू इन ही 0 है तो आ जाओ फॉर्मूला पकड़ो। फॉर्मूला में क्या लिखा है? फॉर्मूला में क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल्स टू समेशन क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अग्रीड और नॉट? बट ये समेशन क्यू इन ही अगर 0 हो जाए तो क्या ये मामला ही खत्म हो जाएगा? ये खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ जाएगा? 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा कितने के बराबर आने वाला है? 0 के बराबर। क्या सारे बच्चे ये बात को समझ पाए या नहीं पाए? ऑनेस्टली स्पीकिंग समझ में आया? बाहर में कितना डेटा था जल्दी बोलो? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अंदर में कितना? सरफेस पे कितना था? कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर कितना था? 0। बताओ वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर क्या है जल्दी बताओ? वेरिएबल। और कैपिटल आर क्या है? कांस्टेंट है। बोलो ये तो नहीं बदलेगा ना? अभी फिलहाल किसी कंडीशन में रेडियस तो नहीं बदलने वाला, वो तो फिक्स है। तो बताओ इन तीनों डेटा में कौन कांस्टेंट डेटा है? फिक्स कौन सा है? सेकेंड वाला, थर्ड वाला या फर्स्ट वाला? सेकेंड वाला कांस्टेंट है? नहीं कांस्टेंट है। इट्स अ कांस्टेंट। बोलो यार ये तो 0 ही है। और ये कैसा है? वेरिएबल या इनवर्स? वेरिएबल। वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में? क्या चार्ज बदलेगा? चार्ज तो बदल क्या सकता है? आर। अब डिस्टेंस ले सकते हो तो ई और आर का कैसा रहेगा? इनवर्स का या डायरेक्ट का? इनवर्स का। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। बोलो यार ये सोनू, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब चलिए, अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 1 बोलो कौन सा है? आउटसाइड। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? ऑन सरफेस। थर्ड आपत्ति? क्या सभी ने ये कर लिया ना? ये कॉपी हो गया तो अब आते हैं हम लोग सारे बच्चे को पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4। नंबर 4 पे हम सारे बच्चे ध्यान से ग्राफ हम बनाएंगे। तो एक बात बताओ, हम सिर्फ
हाँ चलिए देखिएगा, चलिए बताइए सबको इनसाइड क्या हुआ, जल्दी बोलो। जीरो या नॉन जीरो? जीरो। आउटसाइड क्या हुआ? सॉरी, सरफेस में क्या हुआ? कांस्टेंट। और आउटसाइड कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। तो कहानी समझना सब कोई। अंदर जब थे तुम तो वैल्यू जीरो के बराबर था, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने वाई पे बनाया, वाई का डेटा एक्स पे कितना हो जाएगा? जीरो। आगे बढ़े आप और एकाएक आप यहाँ पे पहुंच गए क्या? तो ये डेटा कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। सरफेस पे कांस्टेंट है ना, और कितने के बराबर है बोलो? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो यार ये सुनो, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था। अरे भाई उसका डेटा कितना आया? कैपिटल आर स्क्वायर। फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स है। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। अब समझना सबको डॉटेड लाइन क्यों? क्योंकि मुझे ये ग्राफ नहीं बनाया मैंने, मैंने बोला इस पॉइंट पे इसका वैल्यू इतना फिक्स हो गया, ठीक है। बट जैसे आप बाहर आते हो, बाहर कैसा रिलेशन चल रहा है? इनवर्स या डायरेक्ट का? इनवर्स का। तो इनवर्स का आप ग्राफ बना दीजिए और बन जाइए। अरे बोलो हाँ या ना। इनवर्स का ग्राफ तो ऐसे ही चलता है ना, बिकॉज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, जल्दी बताओ? आर स्क्वायर। तो क्या सभी को ये ग्राफ समझ में आया कैसे बना है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अंदर में जीरो, सरफेस पे कांस्टेंट, और बाहर कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ठीक है, अब सुनो, मैंने किसके बारे में बात किया, जल्दी बोलो? कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग शेल। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ये कल के दिन नॉन कंडक्टिंग शेल पूछ ले, कौन सा पूछ ले जल्दी बताइए? नॉन कंडक्टिंग। सारे बच्चे ध्यान से, तो भी यही तीनों केसेस चलेगा। तो भी कैसा चलेगा? यही तीनों। नॉन कंडक्टिंग कौन से हो सकते हैं? तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज हो सकते हैं क्या यार? आराम से। सेल क्लॉथ चार्ज हो सकता है, थर्मोकोल के बहुत चार्ज हो सकते हैं। दे आर नॉट कंडक्टर्स, बट चार्ज तो हो सकते हैं। अरे तुम्हारा हेयर चार्ज हो सकता है, बट हेयर इज अ कंडक्टर। समझ में आई बातें? तो कंडक्टिंग इज नॉट पॉसिबल, तो नॉन कंडक्टर हो, कंडक्टर हो, दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों केसेस में ये तीनों केसेस सेम आने वाले हैं। और क्या पॉसिबल है? कल के दिन आपसे पूछ दे इसी केस में कि सॉलिड कंडक्टिंग शेल, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर। सारे बच्चे ध्यान से, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर? मैंने अभी किसके बारे में चर्चा किया है? इट्स अ शेल और स्फीयर। शेल मींस नारियल की तरह अंदर से खाली, सॉलिड स्फीयर मींस अंदर से भरा हुआ।
कंडक्टिंग वाला, कंडक्टिंग मतलब मेटालिक होगा, उसके भी यही तीनों केसेस चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कंडक्टिंग स्फीयर के केवल और केवल जो समेशन क्यू इन इज इक्वल टू क्यू होता है, वो केवल और केवल ऑन सरफेस होता है। ऑन कहां होता है जल्दी बताइए? सरफेस। इसलिए तीनों केसेस में आंसर सेम आएगा, ग्राफ सेम आएगा। तो बताओ मुझे, अगर आपसे कोई पूछ ले कंडक्टिंग शेल का क्या केस होगा? एक, दो, तीन और चार। नॉन कंडक्टिंग शेल का क्या होगा? एक, दो, तीन और चार। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का क्या होगा? एक, दो, तीन और चार। लेकिन अब बचो, बचा क्या? बचा क्या इसमें से? थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाओ, क्या बच गया बोलो? बोलो क्या बन गया यार? दिमाग लगाओ। कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल, और क्या बचा बोलो? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तो क्या बोलेगा? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अरे बोलो यार, यस और नो। और उसमें कंडीशंस बदल जाएंगी। उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्या सभी को ये बातें समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्वाइट इजी एंड सिंपल। अरे बोलो यार, तो क्या क्या चीज में सेम से आएगा? बोलो सब कोई। मैं तुमसे बोलूं, एक सुन लो। कॉपर का बना हुआ एक हॉलो बॉल है, इसका बना हुआ, क्या सेम केस आएगा? थर्मोकोल का बना हुआ एक हॉलो बॉल है, स्फीयर है, सेम केस आएगा? कॉपर का भरा हुआ एक बॉल है, भारी सा, सेम आएगा। बट अगर थर्मोकोल का भरा हुआ बॉल है, वो पढ़ाया नहीं गया है। समझ में आई बातें? तो सबका केस क्या चलेगा? सेम या डिफरेंट? सेम। क्लियर है यहाँ से? क्वाइट इजी एंड सिंपल। चलिए कॉपी दिस ऑल स्टफ। चलो करो कॉपी। लिख लेना एप्लीकेशन वन। एप्लीकेशन वन में सब डाल देना। पहला, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल, सारा सेम।
किसी को चारों पॉइंट्स में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आ गया कैसा है? इनसाइड कितना होता है? इनसाइड कितना होता है? सरफेस में क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल। बाहर में वेरिएबल। इनवर्सली या डायरेक्टली? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ सकते हैं क्या आप? फोटो क्लिक करके अपडेट कर दीजिए प्लीज। सब सेम। कंडक्टिंग में सेम शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल सेम। फिर से बता रहे हैं, कॉपर का एक बॉल है खोखला, सेम। थर्मोकोल का एक बॉल बना हुआ है या प्लास्टिक का बॉल बना हुआ है खोखला, ठीक। अंदर से भरा हुआ बॉल है लोहे का, सेम। एक ही चीज बचता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आने वाला है। गलती करोगे क्या हो जाएगा ये सारा? अच्छा। एक बच्चा फोटो क्लिक करके प्लीज अपडेट करो ग्रुप पे। कर लिए क्या? चलो बढ़ते हैं आगे। अब हटाएं क्या अब? नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक? एप्लीकेशन 2 क्या होगा बोलो खुद ही। बोलो एप्लीकेशन 2 क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? होना चाहिए क्या? बोलो सबको ही। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, वेरी गुड, कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चालू करते हैं। करें क्या? आपकी इजाजत हो तो देखो सबको ही इसके तरफ। सारे बच्चे देखो। मान लो ये वाला सॉलिड स्फीयर नहीं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बट नॉन कंडक्टिंग के साथ अब केसेस, आप चलो लिखना बंद करो, घर पे जाके फिनिश कीजिएगा अपना, ठीक है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ऐसे नॉन कंडक्टिंग वाले जो होते हैं वो इंटरनली चार्ज होते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ था। तो इसका भी हम लोग रेडियस कैपिटल आर मानेंगे, वही कहानी। सेंटर से डिस्टेंस कितना लेंगे? स्मॉल आर। मैं गॉसियन सरफेस एक बना देता हूं, समझ रहे हो ना? ये स्फेरिकल बना होगा, मैं ऐसे बना दिया बस समझाने के लिए, ओके। आप स्फेरिकल चाहो तो ड्रॉ कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, और डीए तुमने ऐसे बनाया। क्या बाहर का कहानी सेम नजर आ रहा है क्या? एग्जैक्ट बोलो यार। वही थीटा का डेटा कितने के बराबर? जल्दी बोलो सब कोई। 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो पहला केस, आर ग्रेटर देन आर मतलब क्या हुआ? आर ग्रेटर देन आर मतलब क्या हुआ? आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड, वेरी गुड। क्या जल्दी बोलो? आउटसाइड। अगर आउटसाइड है बच्चा, सब कुछ सेम ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा संयोग बस उतना ही आ जाता है फिर से, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब वही केस चल रहा है अभी भी। तो मतलब यहां भी आउटसाइड में सेम केस चल रहा है, के क्यू बाई क्या चलेगा बोलो? स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए सेकेंड में आ जाओ। आर इज इक्वल टू आर, सरफेस पे। कहा जल्दी बोलो? सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा कितना आ जाएगा बोलो? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सेम कहानी, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, सेम। मतलब आउटसाइड और सरफेस का सेम इसका भी होगा आंसर, बट इनसाइड बदलेगा। क्यों? अभी तक इनसाइड में चार्ज नहीं था, इनसाइड में चार्ज आ गया है। कहानी समझ में आ गई? अब आते हैं किसमें, जल्दी बताइए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर लेस देन आर, दैट इज द इनसाइड। सारे बच्चे गौर से देखो। अभी तक मैंने कहा था समेशन क्यू इन 0 होता है, बट यहां पे समेशन क्यू इन नॉट इक्वल्स टू 0 है, और नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कहानी बदल जाएगी, और यही कहानी यहां पे यूज होगी, ओके। चलिए कहानी समझते हैं। अब क्या करेंगे हम? अंदर आ जाएंगे और अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। बात को प्लीज स्टॉप योर पेन, लुक हियर।
इंपॉर्टेंट है, छापा छापी बाद में कर लीजिए, ठीक है। मैंने डॉटेड लाइंस बना दिए। डॉटेड लाइंस मतलब बच्चे ये क्या है, जीएस है। जीएस स्टैंड्स फॉर गॉसियन सरफेस, बना लिया तुमने। और गॉसियन सरफेस का सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर मानते हैं, तो मान लो स्मॉल आर, यही बोला था। अब अंदर चार्ज लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होगा इसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा तो बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो और डीए भी निकाल दो। क्या मेरी बातें समझ में आई, मैंने क्या कहा? अंदर अंदर गॉसियन सरफेस बना लो क्योंकि अंदर चार्ज लाई कर रहा है, बोलो यार। और उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो और उसी गॉसियन सरफेस पे एक डीए ड्रॉ कर दो, खत्म हो गया मामला। जो बाहर कर रहे थे वही अंदर कर ले रहे हैं। यहाँ से सब कुछ तो सेम ही नजर आ रहा है, बट चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। अब चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर कितना चार्ज लाई कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉर्मूला में समेशन क्यू इन है, इनका मतलब होता है उस सरफेस के अंदर कितना है, बाहर से मतलब नहीं। तो मुझे यहाँ पे समेशन क्यू इन कितना है ये पता करना पड़ेगा। तो आइए पता करते हैं सबसे पहले समेशन क्यू इन का डेटा कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बदल जाएगा। चलिए कैसे पता करते हैं, सारे बच्चे गौर से देखो। हाउ विल गोइंग टू प्रूव इट? मान लो इसका चार्ज क्यू है, चार्ज कितना जल्दी बताइए, क्यू टोटल चार्ज। बताओ ये कैसे शेप का होगा, 3D 2D 1D कैसा होगा? 3D होगा, बिकॉज स्फीयर। और स्फीयर का जो चार्ज होता है बच्चे, उसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होता है, अंदर से लेके बाहर, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इस पे जो चार्ज है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब पे चार्ज क्यू है, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार, इतने टोटल वॉल्यूम पे इतना चार्ज है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, बोलो सब कोई। क्यू बाय डिवाइड कर दे क्या, कितना हो जाएगा बोलो? 4/3 पाई कैपिटल आर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मुझे तो चाहिए केवल और केवल अंदर वाला, और अंदर वाले का रेडियस कितने का है, बोलो सब कोई। स्मॉल आर या कैपिटल आर? तो लगा दो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना आंसर निकलेगा, तो क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अरे बोलो यार ये नो, ये कहानी तो पहले भी कर चुके हैं। इतने टोकरी में इतने आम, एक टोकरी में कितने आम, बता रखा है ना, यूनिटरी मेथड चल रहा है। वही काम किया, इसको डिवाइड कर दिया, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। यार इट्स अ सिंपल यूनिटरी मेथड। बेसिक बेसिक तो समझ में आ रही है बात है ना, ये चार्ज में भी किया था वहां पर। चलो, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल आउट। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट, क्या आंसर आ जाएगा बोलो? क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, यही होगा ना? सब तो कैंसिल हो गया, और तो यही निकला डेटा किसका, जल्दी बताओ? समेशन क्यू इनका। किसका डेटा निकल के आया बोलो यहाँ से? समेशन क्यू इनका। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब ये आ गया। अब मुझे निकालना है इसका क्या चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। और बाहर के दो पॉइंट्स का सेम ही रिजल्ट है, अंदर का यहाँ पे आंसर लाना है, लेके आते हैं। सारे बच्चे ध्यान से फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, सारे बच्चे बोलो, ई डॉट डी ए समेशन ऑफ क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? आपके अकॉर्डिंग ई और डी ए में कितने का एंगल दिख रहा है आपको? सेम ही डायरेक्शन। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री बोलो? 0। लगा दो और अप्लाई कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ कितना डिग्री? 0। समेशन क्यू इन का वैल्यू कितना आया है बोलो? क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। बोलो यार ये सोनो, कॉस 0 का वैल्यू कितने का? ई को बाहर निकाल ले क्या? क्या बचेगा ब्रैकेट? डी ए क्यू इंटू आर क्यूब बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। बोलो हाँ या ना? मैथ्स लगाया, आंसर लाया। अब बताओ डीए का इंटीग्रेशन, भाई डीए एरिया है, एरिया का इंटीग्रेशन 3 डायमेंशन एरिया होगा, और 3 डायमेंशन एरिया कितना होता है? 4 पाई r² 4 पाई क्या चीज? r²। स्मॉल आर या कैपिटल आर? मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ये ब्लैक पोर्शन का, तो ब्लैक पोर्शन का रेडियस कितने का है? स्मॉल आर। लगा दो ई इंटू 4 पाई, जल्दी बोलो, r² क्यू इंटू आर क्यूब बाई क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कॉमन चीजें हटा दो, क्या हटेगा बोलो सब कोई? एक आर बचेगा क्या? क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी बोलो सब कोई? ई बराबर बोलो सब कोई, क्यू आर बाय, जल्दी बोलो सब कोई?
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर क्यू। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत क्या? अरे भाई क्यू आर रह गया, 4 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मैथ्स है। होगा नहीं होगा? अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? तो क्या आ जाएगा, के क्यू आर बाय आर क्यू। उम्मीद कर रहा हूं सभी को ये बातें समझ में आई। बोलो यार, आया नहीं आया? तो क्या फॉर्मूला बना है जल्दी बोलो। के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू। स्मॉल आर वेरिएबल है, कैपिटल आर वेरिएबल? कौन बदल सकता है? कैपिटल आर तो क्या है? वो रेडियस है, फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स्ड है। समझ में आया? तो इसके रिजल्ट में यहां पे थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आया, जहां पे रिजल्ट आया और पीछे दो रिजल्ट्स में, मतलब तीनों रिजल्ट्स में शेल किसी भी प्रकार का हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, अंदर में जीरो था बट यहाँ पे अंदर में है। और ये कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सुनना सभी को, यहां तक क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा एक और रिजल्ट लिखा रहता है किताबों के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो आते हैं इसमें एक रिजल्ट समझने के लिए, पॉइंट नंबर 3 चल रहा है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वो रिजल्ट क्या है? पॉइंट नंबर 3 का मान लो ये ए सेक्शन है और मैं बी बनाने जा रहा हूं। सारे बच्चे गौर से देखो, ठीक है? यहाँ पे बताओ ये चार्ज किसमें स्प्रेड होगा, वॉल्यूम में, सर्फ एरिया में, या लाइन पर? वॉल्यूम में। कैसा शेप है ये, 3D। तो क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी याद है तुम्हें? रो बराबर क्या था बोलो? चार्ज बटा वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। अरे बोलो यार, ये सुन, यही होगा ना? तो बताओ चार्ज का डेटा कितने के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अरे आया नहीं आया? ये किसका डेटा आया जल्दी बोलो? चार्ज का। आ गया क्या? किसका डेटा आया बोलो? चार्ज का। अरे बोलो यार, ये चार्ज के डेटा को उठा के इस रिजल्ट पे रखना है। रेडी है क्या? चलो रखते हैं। क्या रिजल्ट लिखा है बोलो सब कोई? ई बराबर के क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यू, ठीक है? के का डेटा भी रख देना। के बराबर हम लोग क्या जानते हैं बोलो सब कोई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी पता है हमें। चलो रखते हैं एक एक चीज को। के का वैल्यू कितना रखेंगे बोलो? बोलो भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। क्यू का डेटा कितना है बोलो? पाई कैपिटल आर क्यूब। अरे बोलो यार ये सोनू, और क्या होगा? इनटू स्मॉल आर। बोलो यार ये सोनू, पाई क्या हो जाएगा? कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा क्या? अरे क्यू का डेटा रख दिया, आर क्यूब रख दिया, आर की जगह आर रख दिया। समझ में आया नहीं आया? मैंने इन दोनों डेटास को रखा है, इसको और इसको, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये। अब आया? कोई दिक्कत? चलिए रखते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पाई से पाई, 4 से 4, आर क्यूब से आर क्यूब, और भी कुछ नहीं। क्या हो जाएगा बोलो? रो और आर ऊपर बच गया क्या? तो बच गया रो आर, नीचे क्या बचा? और क्या चीज? 3। तो 3 एप्सिलॉन नॉट। ये भी रिजल्ट हो जाता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये दोनों रिजल्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। बोलो यार यस और नो। तो इसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 क्या बनेगा बोलो खुद? क्या बनाएंगे आप? ग्राफ। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। समझ में आ गया सभी को? तो ये फॉर्मूला आ जाए, ये फॉर्मूला आ जाए, दोनों का मीनिंग सेम है, दैट्स इट। इसमें के और क्यू का डेटा उठा के रखा गया उसी में। समझ में आई बात है? बट ये फॉर्मूला भी बहुत चलता है, ठीक है? ध्यान रखना दोनों सेम ही फॉर्मूला है, बट इसको और इसको, तो ये पार्ट बी है, पार्ट बी है। अब चलो, अब हम क्या बनाएंगे जल्दी बोलो सब कोई? हमारा 3 हो गया, फोर्थ में क्या बनाएंगे जल्दी बोलो आप लोग? वी विल गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। आइए कहानी समझते हैं। प्लीज फोन को साइलेंट करें, कुछ बच्चे का फोन ब्लिंक हो रहा है बार बार। ई और क्या चीज जल्दी बताओ? यहाँ से आर। ई और आर का रेडियस हम लोग बनाएंगे क्या? ई और आर मतलब डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस प्लीज, आर इज नॉट अ रेडियस, कैपिटल आर इज अ रेडियस। अब चलो, मुझे लेना है, मैं सेंटर पे पॉइंट ले लेता हूँ, 0,0, फिर से सेंटर हो जाएगा। किसका ग्राफ आप बना रहे हैं जल्दी बताओ? ग्राफ किसका बना रहे हैं ये तो पता होना चाहिए। क्या इसका ग्राफ बना रहे हैं? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड अंदर से भरा है, थर्मोकोल का बॉल, पूरा अंदर से फिल्ड होता है, हल्का होता है, पर वो अंदर तक चार्ज उसका इम्बेड होता है। समझ में आई बात है? आप चलिए बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ये 0,0, ये आर बराबर आर। बोलो यार ये सोनू। तो इससे पहले क्या हो जाएगा? आर स्मॉलर देन आर,
इससे बाहर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इनसाइड। ये कौन सा, ये कौन सा, फिर से बोलेंगे इनसाइड सरफेस और क्या चीज, आईएसओ। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। चलो, इनसाइड का फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या आपको, इनसाइड लास्ट पॉइंट है भैया, इनसाइड कौन सा पॉइंट है, लास्ट। क्या फॉर्मूला नजर आया, ये क्या कैपिटल आर से रिलेशन निकलेगा, किससे रिलेशन निकलेगा, स्मॉल आर से। कैसा रिलेशन, डायरेक्ट या इनवर्स, कहीं भी देख लो डायरेक्ट ही नजर आएगा, कहीं भी देख लो कैसा नजर आ रहा है, बोलो यार यस और नो, डायरेक्ट। और डायरेक्ट का ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। बना क्या, इस पॉइंट पे आके ये कांस्टेंट हो जाता है, और कितना कांस्टेंट होता है बोलो सब कोई, कितना होता है बोलो, अरे सरफेस पे आ गया ना, सरफेस पे क्या डेटा है बोलो, ये रहा सरफेस, के क्यू बाय कैपिटल आर या स्मॉल आर, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट। और बाहर कैसा है, बाहर कैसा रिलेशन है, इनवर्स या डायरेक्ट, इनवर्स का, अरे बोलो यार। और इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ग्राफ बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा, फिर डाउनवर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत। दिस इज अ ग्राफ फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया हो। मेरे यहां से वहां ग्राफ इसको टच कर रहा था, यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, फिर ये अंदर का बात है, सरफेस का है, और ये आउटसाइड है। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ऑनेस्टली स्पीकिंग बोल दीजिए किसी भी पॉइंट के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरी तरीके से। अब ये दोनों फॉर्मूला यूटिलाइज हो सकता है। आप समझ जाए एक इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूलाज निकाला, क्या क्या निकाला देखो सब कोई। स्फीयर के लिए जो रिजल्ट आया है बच्चे, स्फीयर के लिए रिजल्ट आया हुआ है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। केवल और केवल इस रिजल्ट को छोड़ दो, लास्ट वाले को, यही आया है ना, के क्यू बाय क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर। याद करो, मैंने डायपोल के लिए रिजल्ट निकाला था एक, चलो याद दिलाते हैं। द फॉर्मूला वाज के पी बाय आर क्यू। दो रिजल्ट था, इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। एक था 2 kp बाय आर क्यू, अगर इक्वेटोरियल है तो बोलो यार यस और नो। और एक डायपोल का और था केपी बाय आर क्यू, बट ये कौन, सॉरी ये एक्सियल का था, और ये किसका था बोलो, इक्वेटोरियल का। ये क्यों बताने लगे एकाएक, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के कारण जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें रिजल्ट आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। डायपोल में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही आ रहा है, बट नीचे क्या आ गया बोलो, आर क्यूब आ गया। अरे बोलो हाँ या ना, गौर से देखिएगा सारे रिजल्ट्स को, क्योंकि चैप्टर अब अंत की तरफ पहुंच रहा है। ये पहला है, ये दूसरा है, और दूसरा मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला निकाला था, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज मतलब एक चार्ज रखा है मात्र, उसके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसका भी फॉर्मूला निकला था ई पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई और आर का फिर से कैसा रिलेशन निकल गया, स्मॉल आर स्क्वायर का। ध्यान रखना, इस रिजल्ट का यूज करेंगे कुछ देर के बाद, ध्यान रखोगे। अभी उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण निकाला हुआ है, हम लोगों ने अभी निकाला स्फीयर के कारण, और हम लोगों ने डायपोल के कारण पहले से निकाल के रखा है, ठीक है। मात्र एक जगह रिलेशन है जहां डायरेक्ट का रिलेशन है, वो इनसाइड पॉइंट पे होता है। अब इसका क्या यूज है, अभी कुछ देर बाद समझ में आ जाए, क्लियर है सभी। तो पहले एक काम करना, और इसको इस पॉइंट्स को हाँ लिख लेना, और इसके नीचे में चौथा पॉइंट का एक स्पेस छोड़ देना। समझ में आई बात है, इसको लिख लेना, बट चौथे पॉइंट का एक स्पेस छोड़ देना, एक रिजल्ट और आएगा। चलो लिखो एप्लीकेशन 2, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सारे बच्चे अच्छे से लिखो। आप लोग सिलेबस वगैरह मिल गया है ना सब कुछ का। कल 9 बजे पेपर है आपका, सारे बच्चे शेड्यूल टाइम पे प्रेजेंट रहेंगे, 9 से 11।
2 पेपर देना है आप लोगों को। जिसका मैथ्स है मैथ्स देंगे, बायोलॉजी है बायोलॉजी, मेन पेपर देना है। इनका मैथ्स है, मैथ्स वाले बच्चे घर पे जाके अपना मैथ सॉल्व कर लेंगे, मतलब एक्स्ट्रा जिनका मैथ्स है, ठीक है। बट मेन पेपर आपको लिखना है। 45 सवाल रहेंगे कल, 45 क्वेश्चंस, 2 आवर्स का टाइम। चलो लिखो, ठीक है। जिसका केमिस्ट्री बायो मेन पेपर बनाएगा बस। और कॉपी भी चेक आपका केवल मेन पेपर का होगा। मैथ्स वाले बच्चे जिनका साइड सब्जेक्ट मैथ्स है, उनका साइड सब्जेक्ट आप प्लीज जाके सॉल्व कर ले, पेपर सबको सब मिलेगा, ध्यान रखना। पेपर मैं सबके लिए सारा बनवा दूंगा। आपकी ड्यूटी है कि अपना फोर्थ पेपर आप देखे जाके, समझ रहे बात को ना। नहीं तो मार्क्स देने में बच्चे अनइक्वल हो जाता है, कि किसी बच्चे को कैसे फिर एडजस्ट करे, कि मैथ्स का बच्चा है और बायोलॉजी का है, एक को तो मान के चलो 60 में फिर काउंटिंग हो जाएगी, या उसके लिए क्वेश्चन हो जाएगी ना 45 प्लस 20 65, उसको टाइम भी डेफिशिएंट मिलेगा। तो मेन पेपर ही दो अपना, 20 क्वेश्चन आप बना लो घर पे जाके। आप ऑनेस्ट हो तो अपना प्रेस दो घर पे जाके बैठ के। पेपर मैं सबको दूंगा, मैथ्स वाले को बायो पूरा मिलेगा, बायो वाले को मैथ्स पूरा मिलेगा। पेपर सबके लिए इक्वली प्रिंट होगा। केमिस्ट्री में 25 है, केमिस्ट्री इज 25, 20 क्वेश्चन फॉर द बायोलॉजी एंड 20 फॉर द मैथ्स। तो सीधा बैठ तो।
हो गया? इन 3 पॉइंट्स को लिखने के बाद चौथे पॉइंट के लिए प्लीज स्पेस लीव करें, इंपॉर्टेंट है। छोड़ दिया सबने? We have gone with the application number 2. Now application number 3. After application 3, we have to fill the point number 4. ठीक है? पहले 3 पढ़ाते होता क्या है। लिखिए क्या? बोलो भाई। फोटो क्लिक करके डाल दिया ग्रुप पे। हटाएं? बोलो भाई। लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 3। लिखिएगा चार्ज कंडक्टिंग वायर। चार्ज कंडक्टिंग वायर एप्लीकेशन नंबर 3। ओके। चार्ज कंडक्टिंग वायर। सारे बच्चे ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकलेगा बोलो? अब ये वायर से भी 3 डायमेंशनली निकलेगा, समझ रहे हो ना? चारों तरफ। जब चारों तरफ निकलेगा तो सरफेस कुछ ऐसा ड्रॉन होगा। बना लिया? एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा, क्योंकि बाहर की तरफ भी आएगा, पीछे भी जाएगा, इधर भी आएगा। सबको जोड़ दो तो कैसा बन जाएगा? सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ये तुमने क्या बनाया, फिर से बोलेंगे? गॉसियन सरफेस बनाया तुमने। ठीक है? यू हैव ड्रॉन द जीएस, और जीएस इज बेसिकली कैसा शेप का, जल्दी बताओ यहां से? इट्स सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप। ओके, कहानी स्टार्ट करते हैं फिर से। तुमने यहां पे बनाया डीए एरिया बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो बताओ कितने का एंगल?
अब ध्यान देना इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर तो ऐसे जाएगा ना, बोलो यार, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा? तो कितने का एंगल बनना चाहिए बोलो? यहां भी, और जहां 90 बना हुआ फाई का वैल्यू ऑलरेडी, फाई जीरो तो मामला ही खत्म ना, तो ई का वैल्यू भी, यहाँ भी फाई कितना हो जाएगा? 0। जहां फाई ही 0 हो गया तो वहां कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो बच कहाँ गया? केवल और केवल ऐसे। और जहां बचा उसको कर्व सरफेस कहते हैं। कौन सरफेस कहते हैं जल्दी बताइए? कर्व सरफेस। ध्यान रखना इस बात को, सारे बच्चे ध्यान से देखो। बताओ यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी यूज हुआ होगा वो कौन सा यूज हुआ होगा? लीनियर एरिया या वॉल्यूम? लीनियर एरिया या वॉल्यूम? दैट इज लेमडा। बोलो हाँ या ना? लेमडा बराबर क्यू बाई एल होगा क्या? तो क्यू बराबर लेमडा इंटू एल। क्या सभी बात, सब बच्चे इस बात से अग्रीड है क्या? ठीक। अब बताओ, मैंने गॉसियन सरफेस लिया तो इसके अंदर पूरा का पूरा वायर आ गया ना, और वायर पे मान लो चार्ज क्यू है, तो समेशन क्यू इन का डेटा क्यू के बराबर और क्यू लेमडा इंटू एल के बराबर। अरे हाँ या ना? क्लियर है? यहां से तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो सब कोई, ई डॉट डी ए समेशन क्यू इन बाय क्या हो जाएगा बोलो? एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? ई और डी ए के बीच में कितने का एंगल? ई और डी के बीच में कितने का एंगल? 0 डिग्री। अप्लाई कर दो, ई डी ए कॉस ऑफ कितना डिग्री? कॉस 0 होगा क्या? समेशन क्यू इन का वैल्यू कितना आया है बोलो? लेमडा इंटू एल बाय क्या चीज है? एप्सिलॉन। ई को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस 0 का वैल्यू 1। वही कहानी चल रही है, लेमडा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सारे बच्चे ध्यान से, डी ए का इंटीग्रेशन बताओ थोड़ा सा, डी ए का इंटीग्रेशन बताओ, बोलो बोलो बोलो। भाई ये कर्व सरफेस बनेगा पूरा। कर्व सरफेस एरिया कितने का होता है? 2 पाई आर एच, मतलब 2 पाई आर एल। अरे बोलो हाँ या ना? इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। फील किया बात को? मैंने इसलिए पहले लिखा था, कौन सा सरफेस बनेगा? कर्व सरफेस। बन गया क्या? अब क्या कॉमन चीज दिख रही है आपको? कैंसिल कर दीजिए। ई का डेटा कितने के बराबर? लेमडा बाय 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इस फॉर्मूला को जानने में तो बोलो प्लीज। समझ में आया सभी को? इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। तो लेमडा इज बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब बोलो, ई और आर का कैसा रिलेशन? इनवर्स का। ई और आर का कैसा रिलेशन? तो पॉइंट नंबर को 3 लिखा था ना, 3 क्या था बोलो मेरे से? पॉइंट चार्ज। अरे बोलो हाँ या ना? क्या रिजल्ट आया था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ई और आर का कैसा रिलेशन? इनवर्स का। पॉइंट नंबर 4 लिखना, लाइन चार्ज। कौन सा चार्ज? लाइन चार्ज, जो अभी अभी पढ़े फ्रेश। चार्ज कंडक्टिंग वायर लाइन चार्ज ही तो है, एक लाइन पे चार्ज किया। ई और आर का कैसा रिलेशन? इनवर्स का। सब जगह इनवर्स ही देख रहा है। थोड़ा ग्राफ बना के दिखाओ तो इनवर्स का सारा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आंसर सबका इनवर्स का सेम ही बनेगा ग्राफ आपके अकॉर्डिंग तो। पर सब एक ही है क्या? आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर स्क्वायर, आर, सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। बट इन चारों का ग्राफ आप ड्रॉ करके देखो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल देना तो बहुत आसान है, दे दिया ग्राफ। इसलिए बोले 4 पॉइंट का इंतजार करो। अब देखो ट्विस्ट एंड टर्न लाता हूँ इस टॉपिक में, गौर से सुनना सारे टॉपिक्स को। समझ में आ गई बातें? केवल छापने पे ध्यान ना दे, फिर कॉन्सेप्ट सीखे अच्छे से। बच्चे इतने इंतजार में थोड़ी बैठेंगे, आप सोचिए। आप लिख रहे हैं, 11:30 बजे तक आप लिखते रहिए, बस हम वेट में बैठे रहे आपके। थोड़ा तेज कीजिए, और भी काम होता है हमें, और भी। समझ में आई बातें? तो कितने पॉइंट्स हो गए? 4। आइए चारों का कंपाइल्ड ग्राफ बना दिया जाए। सारे बच्चे गौर से देखो। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बना लें। पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, पहले इसका अलग से ग्राफ बना देते हैं। ये समझ में आ गया सभी को? तो पॉइंट नंबर ए आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जो तुमने निकाल लिया ऑलरेडी।
पॉइंट बी आपसे पूछेगा क्या, ग्राफ बना दो। क्या बना दो, ग्राफ। ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, अकेले बनाना बहुत आसान है, साथ में अगर दे दिया जाए तब पता चलेगा क्या होता है ग्राफ। ठीक है, आइए चारों इनवर्सली प्रोपोर्शनल को एक साथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, गौर करना क्या क्या है, बोलो। डायपोल है, ठीक है। एक क्या है बोलो, स्फीयर है। एक क्या है, चार्ज और की है। तुम्हें स्फीयर और पॉइंट चार्ज का सेम रिलेशन नजर आ रहा है क्या? तो सेम रिलेशन, वहां तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। बोलो यार, एक ही फॉर्मूला है, क्या ही बदलाव करेंगे आप। चलिए बनाते हैं ग्राफ। सारे बच्चे ध्यान से देखना। पहला ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, थोड़ा ऐसा। मुझे 3 ग्राफ नजर आ रहे हैं, क्या आपको 4 नजर आ रहा है क्या? मुझे 3 ही नजर आ रहा है। क्यों 3 नजर आ रहा है? क्योंकि दो क्या है बोलो, कौन कौन से? पॉइंट चार्ज और स्फीयर सेम ही है क्या? अब सुनो सारे बच्चे, ध्यान देना। मैं इस ग्राफ को याद रखने के लिए ऐसे याद करता हूं, ठीक है। बताओ किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल सबसे हैवी वाला है? आर क्यू, मतलब जो भारी है बहुत। आर क्यू मतलब भारी, भारी मतलब किधर जाएगा, नीचे। सबसे नीचे ग्राफ कौन सा है, ये वाला है क्या? तो बस ये किसका हो जाएगा, डायपोल का। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। आया समझ में? और से हल्का कौन होगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किसका किसका हो सकता है बोलो, स्फीयर और पॉइंट चार्ज। अरे बोलो हाँ या ना। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, जल्दी बताओ, आर स्क्वायर का। और ये किसका होगा फिर से बोलो, लाइन चार्ज का। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज का, आर का। और ये ग्राफ पूछा है बहुत सारे एग्जामिनेशन, सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन ध्यान रखना, जो नीचे है वो आगे है, जो नीचे है वो किधर है, आगे है। गौर करो, ये मैं मान लेता हूँ 1, तो 1 यहाँ गया। इसको माना 2, तो 2 यहाँ रहा। इसको माना 3, तो 3 यहाँ गया। समझ में आया ये चीज? जो नीचे है वो आगे है, जो ऊपर है वो पीछे है। समझ में आई बात है? ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा बनाने वक्त। क्या क्लियर है सभी को? अगर अकेला आइडेंटिकल ग्राफ पूछता तो ऐसा आंसर करते आप। बढ़िया ग्राफ ये पूछ लिया, आप देखना ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा हूँ सवालों में। पहले क्लियर हुआ? एंड तुमको बताते हुए बताता हूँ ये चीज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑलरेडी ड्रॉन इन एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी में मात्र 2 एस्पेक्ट्स का ग्राफ है, मैं तीसरा इसलिए बनवा दिया ताकि इनमें से कोई भी सवाल पूछ ले आपसे, गलती मत करना। सब इनवर्सली प्रोपोर्शनली है। समझ में आया? याद कैसे रखेंगे, जो सबसे हेवी है वो सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे है वो आगे है। समझ में आया? यहाँ से हेवियर इज डाउनवर्ड और हल्का वाला इज ऊपर, दैट्स इट। खत्म हो गया। क्या याद रहेगा क्या ये ग्राफ? चलो, क्योंकि एक ग्राफ है एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जैसे कुछ दिन के बाद खुलेगा नेक्स्ट वीक में, तो वहां सबसे पहले ग्राफ ही डिस्कस होता है। बट अब तुमको आइडिया लग चुका है कैसे बनाना है, ठीक है यहाँ से। अब सुनो मेरी बात को, ध्यान सुनना। आगे एप्लीकेशन लेके जा जरूर रहे हैं, बट गौर कीजिएगा। और वो एप्लीकेशन नंबर 4 होता है। सारे बच्चे ध्यान देना। और एप्लीकेशन नंबर 4 कुछ नहीं है, बस इसी चीज का थोड़ा डिस्कशन डिटेल में। सोचना, वायर का एक्चुअल शेप बताओ कैसा होता है। वायर का शेप बता दीजिए तो मैं मान लूं। वायर इज एक्चुअली सिलिंड्रिकल, वेरी गुड। क्या होता है बोलो, वायर एक्चुअली सिलिंड्रिकल होता है। थोड़ा वायर को मोटा कर लो, आइडिया लग जाएगा। बोलो यार ये सुन, वायर इज एक्चुअली कौन से शेप में, जल्दी बताओ। सिलिंड्रिकल शेप में। और जो सिलिंड्रिकल शेप में होता है उसका रिजल्ट सारे सिलेंडर का भी सेम आने वाला है। तो एप्लीकेशन नंबर 4 कहता है आपसे हॉलो चार्ज सिलेंडर। क्या बोलेगा जल्दी बताओ, हॉलो चार्ज सिलेंडर। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। हॉलो चार्ज सिलेंडर, स्मार्टली ट्रीट करना ब्रेन को। गारंटी बोल लो, बहुत पेक्यूलियर और स्मार्ट सा रिजल्ट आएगा। चलिए यूज करते हैं इसको थोड़ा सा। मैं क्या करता हूं, ऐसा फील करता हूं कि एक वायर ही मेरे पास है। मैंने वायर को क्या किया, मोटा वायर ले लिया, ठीक है। वायर का थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन मोटा है, और उसको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से फील करके उसके अंदर छेद कर दिया। तो बताओ फाइनली क्या बन जाएगा वो, छेद कर दिया ऐसे क्रॉस सेक्शनली। एक वायर लेके आए, तो मान लीजिए ये वायर है, कॉपर का वायर है मान लो ये। तुमने यहाँ से एक ड्रिलिंग मशीन डाला और इधर से उधर नोब को पास करा दिया, क्या बन जाएगा ये, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। एक बन गया ना।
तो हॉलो सिलेंडर इज एक्चुअली अ वायर, और वायर का रिजल्ट निकाल रखे हो, तो हॉलो सिलेंडर का रिजल्ट बदलने वाला नहीं, बट थोड़ा चेंज आएगा। और क्या चेंज आएगा अभी बताते हैं। ये क्लियर है यहाँ से? तो यहां से लिखा वायर, सारे बच्चे गौर से सुनना, फील कर पा रहे हो मेरी बात को? एक्चुअली इट्स अ बेसिकली hollow wire of a large cross section. अरे बोलो हाँ यार, सिलेंडर इज एक्चुअली अ hollow wire of a large cross section, बट थोड़ा सा स्मार्टली ट्रीट कर। यहां तुमने hollow बनाया है, मैं चाहूंगा कि तुम इसको चार्ज कर दो, वेल एंड गुड। अब इससे गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ होगा? अरे वायर का जैसा बना, मैंने बोला ना, एक वायर को छेद करके तुमने बनाया है, तो उसका गॉसियन सरफेस भी वैसे ही बनना चाहिए जैसा वायर का बना है। तो संयोग बस इसका भी जब तुम गॉसियन सरफेस बनाने जाओगे तो वो भी आइडेंटिकल बनेगा और वो भी सिलिंड्रिकल बनेगा। बट कॉन्सेप्ट अगर अच्छे समझोगे तो कभी गलती नहीं होने वाला। वो कैसा बनेगा जल्दी बोलो? सिलिंड्रिकल ही बनेगा। मैंने इसका जीएस ड्रॉ कर दिया, तुम चाहना तो डॉटेड डॉटेड बना देना, ओके, कोई दिक्कत? तुमने सिलेंड्रिकल बना दिया, सारी कहानी सेम चलेगी। मैं स्मार्टली ट्रीट करता हूँ। अभी रिजल्ट नहीं लिख रहा, बट रिजल्ट का एक आइडिया लिख रहा हूँ लिखने का, देखो कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा मैंने उतना ही लिखना है जितना आया है, रिजल्ट कितना है बोलो? लेमडा बाय बोलो आर इंटू एप्सिलॉन। बट बोलोगे वायर और सिलेंडर का सेम हो गया, तो फर्क क्या है दोनों में भाई? फर्क है, वायर को जब तुम सिलेंडर बनाने जाते हो तो थोड़ा चेंजेस आ होता है। क्या चीज का चेंज आ सकता है? इसका चेंज आएगा। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वायर के लॉन्ग के पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जैसे तुम उसको अंदर से खाली करते हो तो वो एक एरिया बन जा रहा है, और एरिया में एरिया चार्ज डेंसिटी लगता है। क्या मेरी बातें समझ में आई या नहीं? तुमने वायर लिया, वायर को जैसे तुमने छेद किया तो वो बन गया क्या चीज? सिलेंडर। सिलेंडर का बच्चे एक एरिया होता है, क्या होता है बोलो? एरिया। तो वायर का भी एरिया होगा, बट वायर तुमने पतला सा लिया है तो उसमें केवल लाइन चार्ज डेंसिटी लगता है, और एरिया अगर ले लिया तो एरिया चार्ज डेंसिटी लगेगा। समझ में आया फर्क क्या है? लेकिन सोचो, मैंने बोला था कंडक्टिंग चार्जेस, कंडक्टिंग चीजों में चार्ज केवल बाहर एकोमोडेट करता है, तो तुम जब छेद कर रहे थे तो क्या चार्ज कहीं लीक हो गया क्या? चार्ज तो उतना ही है, बट पहले वो लाइन पे था, अब वो एरिया पे आ चुका है। आया समझ में? पहले वो किस पे था, अब किस पे आ चुका है? एरिया पे। जैसे कंसेप्ट से तुम्हारा आइडिया लग गया, ये रिजल्ट नहीं है आपका, दिस नॉट अ रिजल्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, इट्स नॉट अ रिजल्ट, बट वी यूज दिस फॉर द रिजल्ट। हम इसका इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट को लाने के लिए डायरेक्टली। समझ में आ गई बातें? अब सुनो सब कोई, चार्ज का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, तो याद रखना ये आ गया। और चार्ज सेम है डिफरेंट है? सेम। अब इस बात को हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा चार्ज को कैसे सेम करते हैं। यहाँ चार्ज का डेटा कितना निकाला है बोलो? लेमडा इंटू एल। यहाँ पे चार्ज में लिख रहा हूँ, देखो कैसे कर, क्यू बराबर, हेल्प करना सभी को, मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। अगर तुम मेरे कंसेप्ट को समझ गए तो गारंटेड ये भी समझ जाओगे। अरे यहाँ चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ लिखा था ना, हाँ या ना? यहाँ भी चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ नहीं, बट एरिया लिखोगे, बट एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच, जो कर्व सरफेस पे केवल होता है। तो 2 पाई आर एच की जगह क्या लिख दोगे? 2 पाई आर एल। मान लो ये वायर जो है लेंथ कितने का है जल्दी बताओ? एल को, और रेडियस आर है, रेडियस कितना है बोलो इसका? आया समझे में ये बात? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया यहाँ से? इसका रेडियस से काम करते हैं, हम कैपिटल आर मान लेते हैं, क्योंकि कैपिटल आर हम फिक्स रेडियस ले रहे हैं और स्मॉल आर हम डिस्टेंस ले रहे हैं। बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखेंगे? 2 पाई कैपिटल आर एल। समझ में आया मैंने क्या किया? कोई दिक्कत? क्या नहीं बदला फिर से बोलो? चार्ज नहीं बदला, ये क्या था? एक वायर था, वायर में तुमने ड्रिल होल करके क्या कर दिया? सिलेंडर बना दिया। क्या चार्ज भाग गया क्या? चार्ज तो उतना अभी भी है, बट ये क्या चीज तुरंत बदल गया? लीनियर चार्ज से ये एरियल चार्ज हो गया, और एरियल चार्ज में चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एरिया चार्ज डेंसिटी होता है। सॉरी फॉर लीनियर, एरिया चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया होगा, तो एरिया चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। खत्म बात। आया नहीं आया? दोनों के चार्ज का वैल्यू सेम या डिफरेंट? तो दोनों को इक्वेट कर दे क्या? क्या हो जाएगा बोलो वैल्यू? सिग्मा इंटू, बोलो बोलो सारे बच्चे, इक्वेट कर दे क्या? इक्वेट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर लिख रहे हैं ताकि जगह मिल जाए मुझे। लिम्डा बराबर क्या लिखा था बोलो? क्यू बाय एल। क्यू बराबर क्या लिखा था? लिम्डा इंटू एल। समझ में आया यहाँ तक? अब सुनो सबको, 1 मिनट, यहाँ भी चार्ज का वैल्यू, वहां भी चार्ज का वैल्यू, ऑनेस्टली बोलना, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हुआ चार्ज समझने में? समझ में आई बात है? चार्ज वहीं रह जाएगा जितना पहले था, चार्ज सेम हो गया,
लेमडा इंटू एल को कितने के बराबर आप कर देंगे? सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। अरे बोलो यार, सिलेंडर से बाहर थोड़ी ना चार्ज जाएगा, सिलेंडर पे ही ना रहेगा। और रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान के चले शुरू से, तो यहाँ भी कैपिटल आर ही मानता, कोई दिक्कत। अब एल से एल क्या कर दोगे? कैंसिल आउट। लिम्डा का वैल्यू कितने के बराबर? सिग्मा 2 पाई आर। अरे बोलो आया नहीं आया? अब इस लिम्डा का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा कितने के बराबर? बोलो सब कोई, बोलो कितना? सिग्मा इंटू 2 पाई आर बाय 2 पाई स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन चीज नजर आ रहा है क्या? 2 पाई से 2 पाई क्या बचेगा? सिग्मा आर बाय स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। किसका वैल्यू आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। नो, दिस द डेटा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिलेंडर, जो कि डायरेक्टली रिजल्ट आपको दे देगा। क्या सभी को ये बातें समझ में आई? कंसेप्ट फील कर पा रहे हो? एप्लीकेशन 3 हम लोगों ने लिखा जरूर था, बट 4 भी रिजल्ट आ गया। और मैं ये कह दूं 4 से 5 भी रिजल्ट आ जाएगा, तो सोचो कैसे आएगा। मानो अभी तुमने कैसा माना है? हॉलो चार्ज सिलेंडर। और अगर यही हॉलो ना होकर के क्या होता? सॉलिड चार्ज सिलेंडर। तो बताओ चार्ज डेंसिटी किस में बदल जाता? वॉल्यूम में। तो वहां लिखते हैं रो इंटू क्या लिखते हैं? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एल। बस दोनों चार्ज को इक्वेट कर दो, वहां से डेटा आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा फिर से। क्या मेरी बात समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? अगर तुम सॉलिड मोटा सा वायर ले लिए तो वो सिलेंडर ही हो गया, वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगा देना, आंसर आ जाएगा, एप्लीकेशन 5 बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने ये लिखा था क्या? बोलो यार, ये वाला लिखा था? ये बस ऐड कर लो, फोर्थ पॉइंट ऐड कर लिए, फोर्थ पॉइंट ऐड कर लो, फोर्थ पॉइंट ऐड कर लो, फिर डिलीट कर देते हो सारा। उसके ये कॉपी कर लेना, 5 भी लिख देंगे एप्लीकेशन फिर। अरे समझे भाई, 3 लिख ही लिए ना, चौथा ऐड करो ना, चौथा पॉइंट छुड़वाया था आपसे। फोर्थ पॉइंट हटा लिखिए जल्दी, और ग्राफ बना लीजिएगा सबका एक साथ। वहीं पे ग्राफ बना लेना, आपको स्पेस देके जहां भी बनाना है बना लेना, और लिख लेना सबके लिए कैसे लिखा है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, जो छोड़े हैं स्पेस। और मुझे लास्ट एप्लीकेशन में हेल्प करो सब कोई, ग्राफ। चलो मुझे हेल्प करो सभी कोई, एप्लीकेशन 5। एप्लीकेशन 5 बताओ क्या होगा? एप्लीकेशन 5 खुद ही बोलो, पहले क्या पढ़े थे बोलो? वायर, वायर के बाद हॉलो चार्ज, चार्ज सिलेंडर। बोलो यार ऐसा, अब कौन सा बोलो? सॉलिड चार्ज सिलेंडर। अरे बोलो यार ये सुनो। और सब आपस में भाई भाई हैं क्या? अब देखो, जो बच्चा स्मार्ट है वो समझ जाएगा। चार्ज का वैल्यू कितना आया पहले वाले रिजल्ट में? लेमडा इंटू एल। चार्ज का वैल्यू अब मैं लिखने जा रहा हूँ सॉलिड के लिए, बोलो क्या लिखेंगे? रो इंटू, बोलो भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना? पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर और स्मॉल आर? कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर इज द डिस्टेंस, कैपिटल आर हमको रेडियस लेना है। बोलो यार, क्या कैंसिल होगा? क्या कैंसिल होगा? ऐसे एल चला जाएगा, क्या बच जाएगा लिम्डा का डेटा? बोलो, रो इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? मेरे पास रिजल्ट आ चुका है क्या? बस उठा के रख दो वहां पे, क्या रिजल्ट हो जाएगा बोलो सबको? ई बराबर रो पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन। पाई से पाई क्या रिजल्ट हुआ? रो आर स्क्वायर बाय 2 आर एप्सिलॉन नॉट। अगर मेरी बातें समझ रहे हो तो दो दो लाइंस में आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप गॉस लॉ लगा के इंटीग्रेशन करते रहिए और युगांडावासी बनते रहिए। समझ में आई बातें? नहीं तो डायरेक्ट मैं यही से रिजल्ट निकाल सकता हूँ। समझ में आया? पांचों एप्लीकेशन क्लियर है क्या? अब जो याद कैसे करना है, शुरू में 1 मिनट छापने से पहले सोचो, हड़बड़ाओ मत। जैसे तुमने उठाया स्फीयर को, देखो रिजल्ट आता है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना 40% सवाल किसी में नीट जेई बोर्ड्स में उठा लो, केवल इसी से आता है, गॉस लॉ बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जैसे तुमने स्फीयर उठाया, स्फीयर उठा रहे एक साथ, कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग सेल, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का रिजल्ट क्या होता है? सेम। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड का भी पहला दूसरा सेम ही है, लास्ट में बस बदला है।
और वो कैसा रिलेशन आ गया है? इनवर्स नहीं, डायरेक्ट का। कैसा रिलेशन आ गया है? डायरेक्ट का। नॉर्मली रिजल्ट होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो? और उसके रिजल्ट में देखना के क्यू आर एक ऊपर आ गया है, तो जबरदस्ती आर ऊपर लाएगा तो नीचे आर क्यूब लाना पड़ेगा। ऐसे के क्यू बाय आर स्क्वायर था, एक आर ऊपर आया तो नीचे क्या आ जाएगा? आर क्यूब। उसके बाद ये चलते रहता है। और इसको अगर तुम समझ गए जैसे समझाया हूँ, तो ये भी रिजल्ट कुछ भी नहीं है। सब में इक्वेट करते आंसर आते जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, और ये ग्राफ याद आया कैसे बनेगा? जो भारी है वो नीचे है, जो नीचे है वो आगे है। दैट्स इट। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट बना लीजिए साहब। ड्रॉ दिस। तुम लोग को चार डेंसिटी तो याद है ना भाई? वॉल्यूम, एरिया और लीनियर। इसी पे बेस्ड है। एक क्लास और, मंथली मंडे, चैप्टर खत्म। बट एक क्लास हम लोग और लगाएंगे सवाल के लिए। ठीक है? हम लोग क्वेश्चंस दे दिए थे ना नीट वाले सारे। अब एनसीईआरटी कर सकते हो सब। यू कैन सॉल्व ऑल एनसीईआरटी, इंटेक्स एक्सरसाइज, होल नीट हम लोगों ने कर लिया है। जेई वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? एप्लीकेशन एंड पे ही पहुंची है अब। सिलेंडर में किसी को कोई दिक्कत? वायर से स्टार्ट करना, वायर से सारा हॉलो सॉलिड सब निकल जाता है। और इसमें नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग कोई नहीं पूछेगा आपसे। वो स्फीयर के लिए केवल रिजल्ट बना है। ठीक है? जो इस सिलेबस में इंक्लूडेड है, डोंट उसमें दिमाग मत लगाओ। कहीं नहीं पूछने वाला वो चीज। और नॉन कंडक्टिंग पूछ लेगा, लगा देना कॉन्सेप्ट, चार्ज अंदर होता है, दैट्स इट। खत्म बात। क्या हुआ?
वही हुलचुल। सीधा कहन बैठते हो यार, कमर में दिक्कत है क्या? हाँ, क्या हुआ, कल लाइन कट गया था क्या? साला मैं नहीं रहता हूँ, रौनक ही खत्म हो जाता है, क्या बोलते हो? अबे वो हो जाता है कि पावर कट, वो अभी ज्यादा लोड पड़ता है ना हर जगह, एसी फेसी ये वो, बिल्डिंग में दो तीन जगह एसी चलते रहता है, किसका ऐसा पता नहीं। साला वो जल जाता है मेन स्विच से ही सब कुछ। हाँ, नहीं इन्वर्टर नहीं हो सकता यार, इन्वर्टर यहाँ बहुत हाई लोडेड इन्वर्टर है, डबल बैटरी लगा हुआ है सॉलिड लेवल का। ऐसे ऐसे। हाँ, नहीं गलती नहीं है गौरव सर का, गौरव सर को नहीं पता था। योर होमवर्क इज द होल एंड नीट एंड होल एनसीईआरटी। इंटेक्स पूरा कर लेना, सुनो, इंटेक्स एंड एक्सरसाइज सब लगा सकते हो आप, ठीक है? मेरे साइड से हो गया है। और इसलिए बोल रहा हूँ, एक दो एप्लीकेशन जो है पढ़ रखे हो ऑलरेडी। रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री करवाया था, दो प्लेट्स के बीच में जेई का क्वेश्चन था, इसका एप्लीकेशन है वो, ऑलरेडी पढ़ रखे हो। कंडक्टिंग प्लेट कंडक्टिंग शीट कराया था ना, वही चीज है। आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर, मंडे को सुन लो सभी कोई, मंडे को आपका फिजिक्स का नोटबुक चेक होगा, पूर्णतः आइएगा अच्छे से प्रिपेयर करके। मैं आधे घंटे पहले क्लास छोड़ के कॉपी जांचूंगा, क्लासेस होगा, क्लास छोड़ के नहीं कॉपी चेक करेंगे, क्लासेस होगा। हाँ, टेंथ नाइन्थ क्लासेस छोड़ के कॉपी चेक कर लेते हैं, आपका नहीं, क्लासेस होगा फिर चेक होगा कॉपी। हाफ एन आवर लगाएंगे, उस दिन आपका फिजिक्स का और बायोलॉजी का पूरा कॉपी चेक होगा। पूरे अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, और आदमी की तरह, युगांडा वासी की तरह नहीं हुआ तो याद रखना, उस दिन लाठियां भी बरसेंगी मुंह पे, मार खा के जाओगे। अगर नहीं मिला तो, और कोई भी बहाना चला तो, ये रीजन था वो रीजन था। मंडे को नहीं ना है भाई, संडे को ना रामनवमी है, मंडे को। मंडे को नहीं आएंगे, ट्यूसडे को आएंगे, तो सार्वजनिक बेइज्जती होगी। वो चिंता मत करो, जिस दिन आओगे उस दिन बेइज्जती होगी। और तुम ये बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरा दिमाग बहुत अच्छा मेमोरी वाला है, मैं एक ही का डेटा फीड करके रखता हूँ। हमारे नोटबुक में क्या है, कहाँ पे किसने क्या गलती किया, सबका याद है। हाँ, तो कोई बात नहीं है, अपने जेंडर के अनुसार मुर्गे बन जाइएगा, छत पे बैठे रहिएगा वहीं वैसे मुर्गा बन के। और जो बच्चे बना के लाएंगे वो दाना देते रहेंगे आप लोगों को, बैठे रहिएगा। हमें क्या, सोच ले, मार खाएगा नहीं तो। बनाया नोटबुक? हाँ, रामनवमी का प्रसाद। चलो भाई, हो गया क्या?